I'm going to discuss past medical question papers with you. How important is it to practice them? If you ask me, that is the most important thing you should do before you actually go to appear in your examinations. Why do I say this? Just check it out. 1. It helps you know the trend. That means you come to know what type of questions are actually asked in the exam. Second, it helps you evaluate the importance of NCERT and try to figure out what exactly the syllabus is all about. Many people will misguide you that don't study NCERT, but at the end of the day, while going through the past papers, you'll realize that NCERT is the most important book for you for the exams, at least for biology. Third, it also helps you figure out which chapters are more important and which are less. You'll find out that there are some chapters from which a huge number of questions they come, while from the others, a relatively lesser number they come. And fourth and most important, you will not believe that many of the questions they are repeated, and if at all some questions do get repeated, that is going to be a good cakewalk for you, right? So that way, practicing them is a must. And for you, I have actually made out, past question paper discussion of all the 38 chapters from biology. You can go to my channel and, access each one of them. So without wasting much time, here I go with my today's lecture. To discuss past 10 years NEET question paper from class 12 chapter 3 human reproduction from 2010 to 2019 because you know it very well अभी तक 2020 के तो exam हुए नहीं है. So without wasting much time, here I am into the chapter. Let me place myself at the bottom of the page and let us start discussing the questions. Right now I'm going to discuss NEET questions from 2010 to 2019 as I told you, and before I start discussing the paper I just want to tell you this, that pehle NEET was called as AIPMT and between the years 2010 to 2012 NEET में दो एग्जाम हुआ करते थे, एक को हम कहते थे प्रीलिम, एक को हम कहते थे मेंस. पहले आपको प्रीलिम क्वालिफाई करना पड़ता था, जब प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते थे तो यू वर एलिजिबल टू गिव अनदर एग्जाम कॉल्ड एज मेंस एंड मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही आपको कोई कॉलेज एलोकेशन होता था. राइट, तो प्रीलिम्स में आपके 200 टोटल क्वेश्चंस आते थे जिसमें से 100 क्वेश्चंस बायो के आते थे एंड मेंस में 180 क्वेश्चन टोटल आते थे जिसमें से बायो के 60 क्वेश्चंस आपका आया करते थे. राइट, सो मैं आपको जब 2010 से 2012 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के क्वेश्चन कराऊंगी. Also, I want you to tell you that in the year 2015 and 16 ये जो AIPMT के एग्जाम है ये किसी कारण से कैंसिल हो गए थे और दोबारा हुए थे. तो मैं आपको पहले वाला एग्जाम के पेपर एंड कैंसिल होने के बाद जो AIPMT हुआ उसके क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर इनटू AIPMT 2000 and prelims 2010. देखिए क्वेश्चन क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज इनकरेक्ट. गलत कौन सा है? Acrosome serves as a sensory structure leading the sperm towards the ovum. ये तो सही लग रहा है. ठीक है कि एक्रोसोम जो आपको पता है स्पर्म के हेड में होता है, ये दिस पार्ट इज इन द हेड ऑफ द स्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम. इफ आई मेक अ वेरी माइल्ड डायग्राम ऑफ द स्पर्म एंड ये सेंसरी होता है और ये उसको एक्चुअली ओवम में ले जाने में मदद करता है. एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन. इनफैक्ट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. व्हाई? बिकॉज एक्रोसोम का फंक्शन होता है, ये कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर है फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग. एब्सोल्युटली पॉइंटेड है, एग को पेनिट्रेट करने में मदद करता है. द स्पर्म लाइजीन्स दे डिसॉल्व द एग एनवेलप. यस, एक्रोसोम के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनको हम स्पर्म लाइजीन कहते हैं. सो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. तो ऑब्वियसली विच ऑफ द 4 ऑप्शंस में which option is the correct? The first, second, this one, sorry, this is not first, it should be second. The second one is the correct one. Why? Because this is the only incorrect statement. Now seminal plasma in humans is rich in, आपको पता है, the secretion of all the 3 glands in males, and that is prostate gland, that is bulbourethral gland, and at the same time Cowper's gland. ये जो आपके 3 ग्लैंड है ना, सॉरी, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, ये जो 3 ग्लैंड है इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन को मिलाकर हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा. एंड ये सेमिनल प्लाज्मा हमें पता है इट इज रिच इन कैल्शियम एंड it is rich in fructose and calcium, I think so, right? So it is, हम लोग पढ़े भी हैं, you can see it on page 44 of your NCERT. It is rich in fructose and calcium. That is the third answer is right. Which of the following statement about morula in humans is correct?
मॉरुला के बारे में पूछ रहा है. इट हैज मोर और लेस द इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए एज इन अनक्लीव जाइगोट. ओ, ये साइटोप्लाज्म एंड डीएनए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, दैट विथ जाइगोट के टर्म में. नाउ लिसन, what is the difference between an ordinary between cleavage and other forms of mitosis? Cleavage and mitosis, other forms of mitosis में difference क्या है? Mitosis में क्या होता है? When one cell first it will divide into two cells. ठीक, the cell will का size will get half. Then each of the cell grows to form the size of the original cell. राइट, सच दैट अगर इस सेल में क्रोमोसोम से 10 है तो ऑब्वियसली इन दोनों में क्या होगा, 10-10 होगा. दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो ही गया. माइटोसिस इज दैट डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर इज सेम. यहाँ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी सेम होता है बिकॉज माइटोसिस के बाद मानते हैं द साइज गेट हाफ बट देन इट ग्रोज बैक टू द ओरिजिनल साइज. अनलाइक दैट क्लीवेज में, if the chromosome number is 10, cleavage is that type of mitosis which is not followed by growth. यानी कि एक से दो सेल बना but the cell का size क्या हो गया, आधा. That means here the cytoplasmic content remains the same as the zygote. क्योंकि ये तो zygote है ना, zygote का cleavage हो रहा है ना, zygote का ना mitosis हो रहा है. तो होता क्या है, cleavage में the cytoplasmic mass remains same as that of the zygote but the DNA content is doubled. Why? Because आपको पता है mitosis में two cells are formed, each having the same number of chromosome as the original. तो अगर ये zygote है, suppose इसका 10 है, this will divide into two cells, each will have 10 number of chromosome but they will not grow in size. Size इसका आधा हो जाता है such that the cytoplasmic content remains the same. The cytoplasm remains the same but the DNA content, it gets doubled. It changes. Is that clear? Now come here. It has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA as the zygote. No, the cytoplasm quantity is same as that of zygote, but the DNA is not the same. It has more cytoplasm. No, it has equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote, but much more DNA. ये सही है. zygote में एंड जो रिजल्टेंट सेल बनते हैं मॉरुला में, आपको पता है जाइगोट से माइटोसिस करके क्लीवेज करके मॉरुला बनता है. तो जाइगोट एंड मॉरुला के सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेम रहता है बट द डीएनए नंबर चेंजेस. आई जस्ट वांट टू शो यू ओवर हियर. से दिस इज अ वन सेल का जाइगोट, इट विल डिवाइड इनटू 2, देन इट विल डिवाइड इनटू 4, देन इट विल डिवाइड इनटू 6, इट विल इनटू 8. दिस स्ट्रक्चर 8 सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मॉरुला. Right? In 8 cell structure, the DNA has become 8 times, 8n. जो भी यहाँ पर DNA था उसका 8 times हो गया क्योंकि 8 सेल बना है, but the cytoplasmic content remains almost the same. Right? So the right answer is the third one. The second maturation division of the mammalian ovum occurs. आपको पता है the second maturation division occurs in the fallopian tube after the sperm entry. ये अगर हम आपका फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं, यहां पर आपका ओव्यूलेशन हो गया, यहां पर सेकेंडरी oocyte है, जब स्पर्म एंटर करता है तब जाकर आपका सेकेंड मियोसिस आपका कंप्लीट होता है. यू नो दैट, राइट? सो लेट अस कम. यहां पर क्या होगा, शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बट बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू fallopian tube. नो, अंटिल द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर्स until the nucleus of the sperm has fused. No, not the nucleus, only the sperm ka head touches, until the ovum has been penetrated by the sperm. The fourth answer will be the correct answer. Right? Now let us come to the signal of parturition. आपको पता है parturition का signal आता है from the fully developed fetus and the placenta. That is fetus and placenta. That is the fourth answer is the correct one. The part of the fallopian tube that is closest to the ovary. ठीक है, ये fallopian tube का वो हिस्सा जो ओवरी के सबके नजदीक पाया जाता है, दैट इज योर इनफंडिबुलम. और ठीक है, दैट इज योर इनफंडिबुलम. दैट इज द राइट आंसर इज द फोर्थ वन. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस and the appearance of hair. Look at page 54 of your NCERT. आपको पता है यहाँ नीचे में मैंने डिटेल में लिखा है, ये क्लास 12 NCERT के यूनिट 6 के चैप्टर 3 के पेज 54 से लिया गया है, राइट? सो यू नो दैट इट अकर्स ड्यूरिंग द 5th month. क्लियर कट आपके पेज 54 में लिखा हुआ है. सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन. Sertoli cells are found in, आपको पता है seminiferous tubules, they are lined by germ cells as well as Sertoli cells. So they are found in seminiferous tubules, excellent, and provide nutrition to the germ cells.
राइट ठीक है, ये आपका पैनक्रियास में नहीं होता, ओवरी में नहीं होता, एड्रिनल में नहीं होता, इट इज फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दे गिव नरिशमेंट टू दिस जर्म सेल, दे गिव नरिशमेंट टू द स्पर्म, सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. वासा एफरेंशिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, आपको पता है वासा एफरेंशिया कहां से बनता है, ये आपका है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये बनाएगा ट्यूबली रेक्टी, ये बनाएगा आपका रेटी टेस्टिस, एंड रेटी टेस्टिस ऊपर जाकर क्या बनाएगा, 10 से 20 वासा एफरेंशिया बनाएगा. दैट मीन्स वासा एफरेंशिया दे एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम रेटी टेस्टिस एंड देन दे ओपन इनटू वास डिफरेंस थ्रू एपिडिडाइमिस. पहले तो ये एपिडिडाइमिस है, फिर ये वास डिफरेंस है, राइट. सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन. नाउ इस चैप्टर से एज यू नो अब तक तो आप लोग को आदत हो गई है, ये चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यानी कि इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन आए, इस पूरे यूनिट से 15 क्वेश्चन आए, जिसमें से 9 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से आए, एंड ओवरऑल 47 क्वेश्चन आया 11 से, 52 आया 12 से, एंड 1 क्वेश्चन केम आउटसाइड एनसीईआरटी. Now let us move to 2011 prelims. The figure given below depicts a diagrammatic sectional view of female reproductive system. Which one of the set parts 1 to 4 have been correctly identified? इसमें आपको correct labeling देखना है. चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ये कहता है 1 is perimetrium. No, 1 is not perimetrium, 1 is endometrium. तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया. सेकेंड में आइए, कहता है 2 is endometrium. No, 2 here is not endometrium, it is myometrium. तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली गलत हो गया. थर्ड वाला कहता है 3 is infundibulum. Yes, this is infundibulum. Fourth is fimbriae. Yes, fourth is fimbriae. And 5 is cervix. Yes, 5 is cervix. That means this is the right answer. Right? तो obviously अगर ये right है तो ये गलत होना ही है. So the right answer is the third one. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 पीटी में, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. वाई? आपको पता है बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, less than the body temperature, which is essential for spermatogenesis, providing a secondary sexual feature for exhibiting the male sex. No. Maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. Yes. Escaping any possible compression by visceral organs, कि अगर ऊपर में रहता तो ये compress हो जाता, नहीं, बिल्कुल नहीं. Providing more space for growth of epididymis. No, this is not the case. You know that the right answer is the second one, right? If for some reason the vasa efferentia in human reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from. Again, you know that where is vasa efferentia? ये है आपका testicular lobule, ये है आपका seminiferous tubule, ये है आपका tubuli recti. ये किस में खुलेगा? This will open into क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस. द रेटी टेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफरेंशिया. ठीक है, ये वासा एफरेंशिया खुलेगा इनटू एपिडिडाइमिस एंड देन इनटू वास डिफरेंस. अब कह रहा अगर ये वाला ब्लॉक हो जाए वासा एफरेंशिया तो क्या होगा? ठीक है, if for some reason the vasa efferentia in human reproductive system gets blocked, the gamete will not be transported from where to where? Vagina to uterus, ये तो फीमेल है ही नहीं. टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस. यस, यहाँ टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के बीच के रास्ते में ये पड़ता है. एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस नहीं, ये तो इस दोनों ही इसके बाद आते हैं. ओवरी से कोई लेन देन है नहीं. सो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज द सेकंड वन. इस साल आपके 2011 पीटी में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आए. ना 2012 पीटी, द लेडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रीटरी सोर्स ऑफ. आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाया जाता है लेडिक सेल्स, एंड यू नो दैट दे मेक द मेल हार्मोन्स एंड्रोजेंस. सो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज द सेकंड वन. इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड. ठीक है, गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी यानी कि and the results expected was, वुमेन प्रेग्नेंट थी एंड उसके ब्लड में जितने भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स थे दे वर टेस्टेड, एंड क्या मिला हमें उसके उसके बॉडी से क्या मिला? हाई लेवल ऑफ FSH and LH इन यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग. नो. हाई लेवल ऑफ FSH and LH
दे आर नॉट आफ्टर प्रेगनेंसी, ये गलत है. हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG, राइट. आपको पता होगा HCG इज कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन. वंस अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, सडनली द अमाउंट ऑफ HCG गेट्स इंक्रीज. In fact, this is the first hormone which is tested as a positive test for pregnancy. प्रेगनेंसी है कि नहीं उसके लिए ब्लड में HCG को ही देखा जाता है. एंड HCG का काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस. तो यस, इन अ प्रेग्नेंट वुमन अगर हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को पढ़ेंगे तो उस वक्त सबसे ज्यादा HCG का अमाउंट पाया जाएगा जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस से मदद करता है, राइट. सो द राइट आंसर इज द सेकेंड वन. Again, this question is a repeat. The signal of parturition, we know that it is from the fully developed fetus and the placenta, both placenta and the developed fetus. That is the right answer is the third one. Now let us move. In 2012 we see 3 questions आपके इस chapter से आए थे. Out of the 12 questions that had come from this unit and 53 questions that had come from class 12. Now coming to 2010 से 12 का, now we'll go for the mains. I told you 2000 से 10 से लेकर 12 तक PT and mains से बटा हुआ है. So first it is 2010 mains. Signal from fully developed fetus and placenta lead to parturition, which requires release of which hormone, right? आपको पता है parturition के वक्त estrogen बनता है आपका. That is very clear cut written in your NCERT. The placenta, it makes no, sorry, not estrogen. You know that parturition requires oxytocin, right? And this oxytocin is made from the maternal pituitary. Mother की pituitary से hormone बनता है oxytocin, and it is this oxytocin जो parturition में मदद करता है. So the right answer is the third one. In female, the blastocyst gets implanted in the endometrium by the trophoblast cells. ये जो blastocyst है ये ये यूट्रस में, अगर ये यूट्रस है, right? So we know that the blastocyst it gets implanted, and implantation में जो बाहर वाले trophoblast cells है वही actually मदद करते हैं. तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है. The blastocyst forms placenta even before implantation, गलत. Get implants into uterus 3 days, no, गलत. Gets nutrition from uterine endometrial, the blastocyst secretion only after implantation. Endometrium. I think the first answer should be the right one. ये actually implant करता है, ये भी मतलब ठीक है. This is the best answer, right? Secretion from which of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes? आपको पता है this is a seminal plasma, and seminal plasma किससे बनता है? Male accessory glands, that is prostate, bulbourethral and seminal gland. उसके secretion को हम लोग कहते हैं. So the right answer is the second one, right? 2010 mains में again 3 question आया from this chapter, which is a good number. Now coming to 2011 mains, what happens during fertilization in humans after many sperms reach close to the ovum? आपको पता है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, राइट? और यहाँ आपका एग है. बहुत सारे स्पर्म्स, आपके मिलियंस में स्पर्म रिलीज होते हैं. दे रीच हियर, राइट? जब बहुत सारे स्पर्म्स रीच करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स वन स्पर्म टू एंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू जोना पेलुसिडा. लग तो सही रहा है क्योंकि एक्चुअली एक ही स्पर्म इनमें से पेनिट्रेट कर पाता है. किसकी मदद से? बाय सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, एंड ये जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करता है. तो अभी तक तो ये सही लग रहा है. ऑल द स्पर्म्स एक्सेप्ट वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल. ऐसा कोई नहीं है. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप ऑल द स्पर्म्स एक्सेप्ट वन. ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ जो ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, ये कह रहा है कि सारे स्पर्म्स को ट्रैप कर लेता है. बिल्कुल गलत. ओनली 2 स्पर्म नियरेस्ट टू दे पेनिट्रेट. नो, देयर इज नेवर पेनिट्रेशन बाय मोर देन 1 स्पर्म. पॉलीस्पर्मी नहीं होता, एक ही पेनिट्रेट करता है. So obviously the right answer is the first one. About which day in normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH normally occur? आपको पता है on the 14th day of menstrual cycle आपका LH का सर्ज होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है. तो obviously यहाँ पर LH सर्ज कौन से डे में होगा? I think it should be the first answer, that is 14th day. Coming to next question, which of the following conditions of zygotic cell would lead to the birth of a normal female child? ठीक है, जाइगोटिक सेल का कौन सा कंडीशन से नॉर्मल फीमेल बनेगा? ऑब्वियसली 2x क्रोमोसोम, इट इज x and x, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, एंड x and y दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल्स. सो इट इज द फर्स्ट वन. 2011 मेंस में 3 क्वेश्चन आया इस चैप्टर से. ओके, नाउ लेट अस कम टू मेंस 2012.
राइट. आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज शोन बिलो. बिलो नहीं, यहाँ मैंने राइट साइड में बनाया है. स्टेज तो मुझे पता है, इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट. वी ऑल नो दैट इट्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. तो एक ही में तो स्टेज सही दिखा रहा है. ठीक. एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट अक्रेंस इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन. कहाँ पाया जाता है आपको पता है, ये ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमन में यूट्रस में पाया जाता है. एंड ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में ही इम्प्लांटेशन होता है आपके यूट्रस में. सो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज द फोर्थ वन. The secretory phase in human menstrual cycle is also called as, हमें अच्छे से पता है, secretory phase is also called as luteal phase. And luteal phase 13 days के लिए होता है. हाँ होता है, क्योंकि आपको पता है 14th डे में एग रिलीज होता है. उसके बाद वाला जो फेज है दैट्स कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज. ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन का फेज है. और आपको पता है टोटल आपका 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है एंड 14 डे के बाद होता है. तो लगभग 13 to 14 डेज का कौन सा साइकिल जाता है, फेज जाता है, दैट इज योर ल्यूटियल फेज. Which of the following statement is false in respect to viability of mammalian sperm? False statement पूछ रहा है. Viability of sperm is determined by its mobility. एकदम सही है. sperm जितना ज्यादा मोबाइल होगा उसकी viability उतनी अच्छी होती है. sperms must be concentrated in a thick suspension. sperm को concentrate करना पड़ता है, ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है. sperm is viable for only 24 hours. एकदम सही है. The egg and the sperm, they are normally viable for 24 hours. Survival of the sperm depends on the pH of the medium and is more active in alkaline. ये भी सही आपको पता है. The pH of prostate gland, seminal vesicle and bulbourethral gland is alkaline because that is alkaline. It's a suitable environment for the sperms. So obviously कौन सा statement केवल गलत दिख रहा है, that is the second one. राइट. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. 2012 में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आया. नाउ लेट अस कम टू ईयर 2013. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है. सीक्रीट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के वक्त ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी बनाता है, न कि प्लेसेंटा. ठीक है, ये पिट्यूटरी बनाता है ऑक्सीटोसिन, न कि प्लेसेंटा. ये तो गलत लग रहा है. इट फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो. एकदम सही है. इट मेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन. ये भी सही है. इट फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल. दिस इज ऑल्सो द राइट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. सो द ओनली फंक्शन विच इज नॉट ऑफ द प्लेसेंटा इज द फर्स्ट वन. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट. मेंस्ट्रुअल फ्लो इज ड्यू टू लैक ऑफ विच हार्मोन. आपको पता है जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तब एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक करता है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुअल फ्लो. आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के वॉल को स्थिर रखता है, इट मेक्स इट स्टेबल. जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तभी ये अनस्टेबल होता है और ब्रेक डाउन करके रिलीज होता है. सो द राइट आंसर इज द सेकेंड वन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन. What is the correct sequence of sperm formation? sperm बनने का क्या है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया. पहले हम लोग खुद ही याद कर लें. स्पर्मेटोगोनिया, फिर है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर है आपका स्पर्मेटिड एंड फिर है आपका स्पर्म. दिस इज द राइट सीक्वेंस. ठीक, अब देखते हैं किसमें है. इसमें स्पर्मेटोगोनिया सही है, फिर स्पर्मेटोसाइट सही है, फिर स्पर्मेटिड सही है, फिर स्पर्मेटोजोआ सही है. दैट मीन्स द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. नीट यूजी 2013 में 3 मार्क के तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे. नाउ कमिंग टू 2014. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल. प्रेगनेंसी के बाद ठीक है क्या आपका होता है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन पेज 53 से रिपीट है. आपको पता है प्रेगनेंसी के बाद HCG हार्मोन राइज कर जाता है एंड दिस HCG प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. हाई लेवल ऑफ FSH and LH नो stimulates and high level of FSH and LH implantation no. High level of HCG stimulates estrogen and progesterone. Yes, this is your right answer. Coming to the next, the shared terminal duct of आपको पता है reproductive tract and urinogenital tract का ये जो common pathway है. ठीक, जिससे आपका यूरिन भी बाहर पास करता है एंड स्पर्म भी बाहर जाता है. दिस पैसेज इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा. We know that, right? So the right answer is the first one, that is urethra. The main function of corpus luteum. आपको पता है corpus luteum का main function होता है it makes the hormone progesterone.
राइट हमने पढ़ा इट मेक्स द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन दैट इज सेकंड इज द राइट आंसर 2014 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे दैट इज अगेन अ वेरी गुड नंबर नाउ लेट अस कम टू 2015 कैपेसिएशन रिफर्स टू चेंजेस इन आपको पता है फर्टिलाइज करने से पहले जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से ऊपर जा रहा होता है राइट तो ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है ताकि एक्रोसोम का फ्लूइड यूट्रस के वॉल को डिस्ट्रॉय ना कर दे इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व किया जाता है जो स्पर्म के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन होता है इसको डिसॉल्व किया जाता है सो दैट द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म is enhanced. This process is called as capaciation. So capaciation refers to changes in the sperm before fertilization, right? स्पर्म फर्टिलाइज करने से पहले ये जो अपने मेम्ब्रेन को लूज करता है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटी ओवम नहीं स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं इट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? Human में जो parturition होता है यानी कि जो बच्चे को birth दिया जाता है इसमें ये कौन सा important component नहीं है Increase in estrogen and progesterone ratio. It is not an important component of initiation of parturition. Parturition के वक्त क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का पार्चुरेशन से कोई लेन देन नहीं है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के वॉल को अनस्टेबल बनाता है राइट ऐसे ऐसे हिलाता है जो स्पर्म एसेंड में मदद करता है तो साथ में ये आपका इवन बच्चे को डिलीवर करने में मदद करता है राइट रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन is important release of prolactin actually मुझे नहीं लगता हो सकता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का कुछ ना कुछ रोल होगा पार्चुरेशन में प्रोलैक्टिन का नहीं होता राइट उसका तो मेमी लैक्टेशन से रिलेशन है सो इन चारों में अगर हम देखेंगे तो आई विल नॉट चूज दिस एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन भी वॉल को अनस्टेबल बनाता है यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है सो दैट द चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन भी वही काम करता है ऑक्सीटोसिन भी वही करता है सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन Which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? The last cell which is diploid is primary oocyte. यानी कि अगर फीमेल और मेल के हैं तो आपको पता है spermatogonia is diploid and primary spermatocyte is diploid. तो इन चारों में polar body is haploid, spermatid is haploid, secondary polar body is haploid. The only one which is not haploid is diploid is of these four is spermatogonia. हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ये आपके एनसीईआरटी मैंने बता दूं जब सर्जिकली डॉक्टर्स सर्जिकली यूट्रस को काट कर हटाते हैं बॉडी से उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी सो दिस इज यूट्रस एंड आपके नॉलेज के लिए प्लीज आप जस्ट कॉपी इट डाउन समवेयर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी को हम लोग कहते हैं ओफोरेक्टोमी एंड मैमरी ग्लैंड्स के रिमूवल को कहते हैं मैसेक्टोमी प्रोस्टेट ग्लैंड के रिमूवल को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेक्टोमी या जिनको विंसी भी कहते हैं तो जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने 2-3 आपको एक्स्ट्रा बता दिया है राइट 2015 में 4 क्वेश्चंस आया था 2015 में AIPMT कैंसिल हो गया था और दोबारा हुआ था राइट जब दोबारा हुआ तो उसपे क्या क्या क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन से क्या रिलेटेड नहीं है राइट सो इफ दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का 1/2 एंड दिस इज योर ओवरी में सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल के अंदर बना है इसका ओव्यूलेशन होना है इनमें से कौन सा ओव्यूलेशन से रिलेटेड नहीं है फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एकदम सही है जब तक ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली डेवलप नहीं होगा ओव्यूलेशन नहीं होता रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ये भी सही है क्योंकि ओव्यूलेशन में एग नहीं रिलीज होता सेकेंडरी oocyte होता है LH सर्ज यस LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही ओव्यूलेशन होता है इंक्रीज इन एस्ट्राडायोल नहीं ये नहीं होगा एस्ट्राडायोल एक ऐसा हार्मोन है जो जो फीमेल में बनता है बिफोर प्रेगनेंसी इसको ओवरी बनाता है आफ्टर प्रेगनेंसी इसको प्लेसेंटा बनाता है एस्ट्राडायोल का काम क्या है इट हेल्प्स टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दैट इज यूट्रस वजाइना सर्विक्स उसको मेंटेन करता है एंड इसका कोई भी ओव्यूलेशन से लेन देन नहीं है ये एक एस्ट्रोजन बेस्ड हार्मोन है जिसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ secondary sexual organs in females that is uterus vagina fallopian tube इसके lining को maintain करता है it is an estrogen and sort of an estrogen type of hormone it's an estrogen based hormone right which of the following layers in an antral follicle is acellular this is a very good question देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाते वक्त क्या बताया था ये आपका से ग्राफियन फॉलिकल है ठीक है
दिस इज योर ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल में ये आपका सेकेंडरी oocyte है, और मैं हमेशा कहती हूँ द सेकेंडरी oocyte इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। मैं आज आपको बता दूं, जोना पेलुसिडा इज नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन, इट इज जस्ट अ रीजन ऑफ डेंस मैट्रिक्स। ये अगर आपका सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों तरफ एक काफी डेंस मैट्रिक्स का एक्चुअली लेयर पाया जाता है। इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नॉर्मली सेल के अंदर होता है मैट्रिक्स, लेकिन यहां सेल के बाहर है। दिस इज एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, and this extracellular matrix is called as zona pellucida। and इस zona pellucida का काम क्या है? ये बेसिकली हेल्प करता है स्पर्म के साथ इंटरैक्ट करके उसको पेनिट्रेशन में मदद करता है। एंड दिस एक्चुअली ऑल्सो इज हैज रिसेप्टर्स फॉर एलएच, क्योंकि एलएच के इन्फ्लुएंस में ही ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है? आपका रप्चर करता है, राइट? तो ये आपका एलएच का रिसेप्टर, ताकि ये रप्चर कर सके एंड सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो सके। सो द असेल्युलर लेयर दैट इज फाउंड इन एन एंट्रल फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको पता है ग्राफिन फॉलिकल में एंट्रम होता है। आपको पता है एंट्रम दो ही में होता है, या तो टर्शरी फॉलिकल में होता है, द टर्शरी फॉलिकल हैज एंट्रम, this antrum, or the graphene follicle has antrum। so graphene follicle में zona pellucida एक ऐसा membranous structure दिखता है, पर actually वो membrane नहीं है, it's an extracellular matrix, ठीक है, जिसका काम होता है LH receptor का काम करता है, at the same time sperm की entry को मदद करता है, ovulation में मदद करता है। this is called as zona pellucida। in human females meiosis is not completed until you know that। फीमेल में सेकेंड meiosis तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि स्पर्म एंट्री ना कर जाए, राइट? दैट इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन। अब यूट्राइन इम्प्लांटेशन, बर्थ और प्यूबर्टी तो होगा नहीं जब तक कि मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज ना करे, राइट? तब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होता। सो आई विल गो फॉर द फर्स्ट वन, योर Now AIPMT में इस चैप्टर से 3 मार्क्स 3 क्वेश्चंस आए थे, दैट इज अ वेरी गुड नंबर। नाउ लेट अस कम टू 2016। चेंजेस इन गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। आपको पता है ये पिट्यूटरी, ये है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। इसके ये दो तरह का होता है, वन इज एफएसएच रिलीज हार्मोन एंड द अदर इज एलएच रिलीज हार्मोन। जिसके इन्फ्लुएंस से पिट्यूटरी दो हार्मोन बनाता है, वन इज एफएसएच एंड द अदर इज एलएच, एंड दे गो टू द ओवरी, ठीक है, एंड दीज दे एक्ट ऑन द ओवरी। नाउ दीज अब ये बोल रहा है इस ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन का पल्स कौन कंट्रोल करता है? हु रेगुलेट्स कि अब बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? प्रोजेस्ट्रॉन अलोन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड इनिबिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन। आपको पता है ये ग्रोइंग सेल्स बनाते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड ग्रोइंग फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन दे बनाते हैं एस्ट्रोजन। बाद में एलएच के इन्फ्लुएंस में ग्राफिन फॉलिकल बनाता है प्रोजेस्ट्रॉन, और जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और ब्लड में ये दोनों हार्मोन की संख्या बढ़ गई, तब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस को रोकते हैं कि आप मत बनाइए, ठीक। तो जब प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन को मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को कि आप मत बनाओ, और जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन एक्टिवेट होता है। मेन प्रोजेस्ट्रॉन है, लेकिन बोथ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का जब क्वांटिटी बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन बनाना बंद कर देता है, और जब उनका ब्लड में मात्रा घट जाता है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन आपका नॉट पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस बनाता है। दैट मीन्स व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज योर सेकंड वन. Sorry, not the second one, estrogen and progesterone, that is the third one. Fertilization in humans is practically feasible only when? कब fertilization possible है? The ovum and the sperm are transported simultaneously to ampulla isthmic junction of the cervix. नहीं, ampulla isthmic junction cervix में नहीं पाया जाता, ये fallopian tube में पाया जाता है, राइट? दिस इज यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, ये गलत है। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिलीज। नो, एग इज वायबल ओनली फॉर 24 आवर्स, राइट? तो ये गलत है। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम। नो,
यहाँ पर थोड़ा ना आपका वजाइना में थोड़ा ना फर्टिलाइजेशन होता है. द ओवा एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुला इस्टमिक जंक्शन ऑफ fallopian tube. Obviously this is the right answer, so the right answer is the fourth one. Select the incorrect statement. LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. No, follicular phase में तो ये दोनों का surge होता है. LH triggers secretion of androgen from Leydig cell. Yes, आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लेडिक सेल्स है, एंड दीज लेडिक सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, राइट, दे मेक द मेल हार्मोन्स एंड्रोजन. ये तो सही लग रहा है. FSH स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल व्हिच हेल्प्स इन, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ओके, तो ये भी सही है. FSH सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस मदद करता है, सही है. LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी. यस, LH के ही प्रेजेंस में ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करके ओव्यूलेशन करता है. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. सो ऑब्वियसली व्हिच वन इज इनकरेक्ट? द फर्स्ट आंसर इज इनकरेक्ट. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन. व्हाट इज इनहिबिन? आपको मैंने मेल में इनहिबिन पढ़ाया था, फीमेल में नहीं पढ़ाया था. मैं आपको दोनों में पढ़ा दूं. ऊपर में मैं मेल में पढ़ा देती हूँ, नीचे फीमेल में. आपको पता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सर्टोली सेल्स हैं, राइट, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH दे प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एज इनहिबिन. और ये इनहिबिन कहाँ जाता है बेटा? ये जाता है हाइपोथैलेमस में और उसको स्टिमुलेट करता है FSH की सिंथेसिस को रोकने के लिए. खुद FSH अपने सिंथेसिस को रोकने के लिए इनहिबिन बनाता है. वंस अगेन आई शो यू. द द पिट्यूटरी मेक्स FSH. Pituitary makes FSH under the influence of FSH release hormone from the hypothalamus, right? जिसके इन्फ्लुएंस से सर्टोली सेल इनहिबिन बनाता है. अगर स्पर्मेटोजेनेसिस जितना स्पर्म बनना था उतना स्पर्म बन गया तो ये इनहिबिन जाता है और पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ताकि FSH ना बने एंड फर्दर स्पर्म सिंथेसिस क्या हो, रुक जाए. फीमेल में क्या होता है? फीमेल में आपको पता है ये ग्राफिन फॉलिकल है ओवरी में, राइट. ये जो ग्राफिन फॉलिकल में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये बनाते हैं इनहिबिन, राइट, ये बनाते हैं इनहिबिन. एंड ये भी क्या करता है? FSH की सिंथेसिस को रोकता है ताकि oogenesis का प्रोसेस बंद हो जाए. मतलब एक एक बनना था बन गया है, फर्दर oogenesis ना हो. यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों में ये इनहिबिन FSH की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, राइट. ये अलग बात है. मेल में ये बनता है फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड फीमेल में बनता है थ्रू द ग्रैन्युलोसा सेल. अब देखो लिखा है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल इन द ओवरी, सही है. एंड इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, गलत. इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल, नर्व सेल होता है सर्टोली सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, गलत. It is inhibits the secretion of LH and this is galat. It is produced by granulosa cells, correct, and inhibits the secretion of FSH. This is correct. So the right answer is your fourth one. Which of the following pairs of hormones are not antagonistic? ये आपके क्लास 11 से है, ये 11 से मैं इसकी बात नहीं करूंगी, केवल इसके बारे में मैं बात करूंगी जो 12 में है. क्या रिलैक्सिन एंड इनहिबिन एंटागोनिस्टिक है? नहीं है. रिलैक्सिन बनता है एंड इनहिबिन दोनों ही बनता है ओवरी से, राइट. ये बनता है ग्रैन्युलोसा सेल से इनहिबिन, राइट. एंड रिलैक्सिन भी बनता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ओवरी इटसेल्फ. बट रिलैक्सिन का काम क्या है? ये है पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि पार्चुरेशन, बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करता है. एंड इनहिबिन तो क्या है? FSH के रिलीज को स्टॉप करता है. तो एक दूसरे से इनका कोई लेन देन नहीं है. ना ये लोग सिनर्जिस्टिक है ना दे आर एंटीगोनिस्टिक. दे आर टू डिफरेंट हार्मोन्स परफॉर्मिंग टू डिफरेंट फंक्शंस, राइट. सो 2016 में 4 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से. एग्जाम कैंसिल हुआ. री AIPMT में क्या एग्जाम आया? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म? रेटी टेस्टिस से जाएगा, वास डिफरेंस से जाएगा, एफरेंट नो, पहले आता है एपिडर्मिस फिर एपिडिडाइमिस फिर वास डिफरेंस. सो दिस इज रॉन्ग. इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है, वासा एफरेंशिया को इफरेंट डक्ट्यूल भी कहते हैं. ये दिस इज ट्यूबुली रेक्टी. ट्यूबुली रेक्टी को हम लोग इफरेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं. इससे जाएगा रेटी टेस्टिस, सही है. रेटी टेस्टिस से जाएगा वास डिफरेंस से एपिडाइमिस, गलत. रेटी जाएगा इफरेंट डक्ट्यूल्स, सॉरी इफरेंट डक्ट्यूल्स हम लोग वासा एफरेंशिया को बोलते हैं. सॉरी, वासा एफरेंशिया, सॉरी नॉट दिस, ट्यूबुली रेक्टी नहीं, वासा एफरेंशिया को हम लोग कहते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स. तो सही है.
आप देखो रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, दिस इज राइट। रेटी टेस्टिस से एपिडाइमिस से दिस वास डिफरेंस नहीं, दिस इज गलत। The right answer is the third one. Match column 1 with column 2 and select the correct option. Mons pubis, it is the female external genitalia, so A का होगा 3. Antrum, it is found in graphene follicle, तो B का होगा 4, B का 4, okay, इन दोनों में. Trophoectoderm, it helps in formation of embryo, सही, C का होगा 1, ये हो गया. And nebenkern is found in sperm. Yes, आप बोलोगे मैम नेबेनकन क्या है? मैंने आपको बताया था कि स्पर्म में ये हेड है, फिर ये आपका नेक है, और मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो आपस में कॉइल्ड होता है ऐसे करके. दिस डबल हेलिकल इंटरवाइंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज नेबेनकन, जो एक्चुअली स्पर्म में पाया जाता है. सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन. राइट, सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? ये सारा आपका बनाता है प्लासेंटा. वी नो दैट प्लासेंटा हमने पढ़ा है पेज 53 ऑफ योर NCERT कि these are the 4 hormones that are made by placenta. So 3 questions came in NEET NEET phase 2 2016. Now let us come to NEET 2017. Gonadotropin release hormone, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on. ठीक है, हाइपोथैलेमस बनाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन. किस पे काम करता है? ऑब्वियसली पिट्यूटरी पे करता है. ठीक है, और कौन से पिट्यूटरी पर काम करता है ये पूछ रहा है. ऑब्वियसली एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, हम लोग को पता है, हमने 11 में पढ़ा है. सो इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पोस्टीरियर ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया. एंड ये स्टिमुलेट करता है टू एंटीरियर पिट्यूटरी टू फॉर्म FSH एंड LH. नाउ लेट अस सी secretion of LH and oxytocin. No, LH and FSH. So which is the right answer? The second one is the right answer. Capacitation occurs in female reproductive tract. आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मेल स्पर्म का कैपेसिएशन होता है. व्हाट इज कैपेसिएशन? आई टोल्ड यू द स्पर्म इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड so to enhance the fertilizing capacity of the sperm, and this phenomena is called as capaciation. A temporary endocrine gland formed in human body is pineal gland. No, it's a permanent endocrine gland. Corpus caardiacum, I don't know. Corpus luteum, yes. ये आपका ग्राफिन फॉलिकल फटकर बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये टेम्पररी है. ठीक है, कुछ दिन के बाद ये कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये सूख के खत्म हो जाता है. सो इट्स अ वेरी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. सो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज द थर्ड वन. 2017 में 3 क्वेश्चन आया, दैट्स अ गुड नंबर. नाउ लेट अस कम टू 2018. Right, 2018 में आया the amnion of mammalian embryos derived from. This question has come outside NCERT as you can see, and I'll just tell you. ये जो आपको पता है मदर के एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर में से this is the uterus, this is your fallopian tube etc. दिस इज अ यूट्रस. आपको पता है यहाँ पर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो एम्ब्रियो होता है, से आई एम मेकिंग दिस एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज एमनियोटिक मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एमनियोटिक मेम्ब्रेन. और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एमनियन या एमनियोटिक मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म का बना हुआ है. यू जस्ट लर्न इट. राइट, सो द राइट आंसर इज द थर्ड वन. हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर. हार्मोन कौन सा हार्मोन बनाता है? आपको पता है HCG, HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. पहला वाला ही सही दिख गया हम लोग को. सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. ओके, हमको पता है द लास्ट स्टेप. ठीक है, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सर्टोली सेल्स है, देन दीज आर द जर्म सेल, सर्टोली सेल, जर्म सेल. द लास्ट स्टेप वेयर द सर्कुलर स्पर्मेटिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलोंगेटेड स्पर्म, दैट्स कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. एंड ये स्पर्म बाद में न्यूट्रिशन लेता है सर्टोली सेल से एंड रिलीज हो जाता है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट्स कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. सो स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स are released. No, they are not released. Release होता है स्पर्मिएशन में. राइट, इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म. नहीं, ये ठीक उल्टा दिया है. इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म. गलत. इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ. गलत. इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म व्हाइल इन स्पर्मिएशन द स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये आपका एकदम सही है. सो द राइट आंसर इज योर फोर्थ वन.
Match column 1 with that of column 2. Proliferative phase, yes, उसका एक और नाम है follicular phase. So A का होगा 2. Secretory phase का दूसरा नाम है luteal phase. We know that. इसका होगा 3. Menstrual phase में breakdown होता है endometrial. इसका होगा 1. So obviously the right answer is the first one. नीट 2018 में काफी क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आए. नाउ लास्ट ईयर 2019 में आपका क्या आया? लेट अस सी. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial stages of lactation, is essential to impart immunity to the newborn because आपको पता है जो मदर का फर्स्ट मिल्क बनता है कोलेस्ट्रम, ये बच्चे को इम्यूनिटी देता है. Why? Because it contains antibody A, IgA, immunoglobulin A. Right? So the right answer is the first one. Correct sequence of transport of sperm cells in male reproductive system: testis, epididymis, vas efferentia, vas deferens. No, it's wrong. Epididymis से पहले आता है vas efferentia. Testis, epididymis, vas efferentia. Again, this is wrong. Now let us see actually किस order में जाता है. So this is your testis. This is their seminiferous tubule. This will lead to tubuli recti, and this will lead to vasa efferentia. Right? All the vasa efferentia will lead into this is reti testis that will lead to vasa efferentia. So this is seminiferous tubule at led into tubuli recti into reti testis opens into vasa efferentia. ये हो गया. This vasa efferentia will open into epididymis. Right? So this is epididymis. This epididymis will open into vas deferens. This is the vas deferens. So this is vas deferens. Vas deferens will open into ejaculatory duct. Both the ejaculatory duct will open into urethra. Ejaculatory duct, and this will open into urethra. Right? So this is how we know it goes. So let us see. Seminiferous tubule, yes. Leads to reti testis, yes. Vasa efferentia, yes. Epididymis, yes. Vas deferens, yes. Ejaculatory duct, yes. Urethra and urethral meatus. So the right answer is your third one. ठीक है. So now next, extrusion of second polar body from egg nucleus occurs during. This is again a repeat question, right? After the sperm entry but before fertilization. You know that once the sperm enters, the secondary oocyte completes its meiosis, becomes egg, and it releases the second polar body, and after this fertilization occurs. So sperm entry हो गया but fertilization से पहले. So obviously the right answer is your second one. So we see that in 2019 again 3 questions have come. So that is a good number. So now before we proceed, I just want to tell you that I feel that this chapter is really very important for your medical entrance examination. A minimum of 3 questions have been asked every year, और कभी-कभी तो उससे ज़्यादा भी पूछे गए हैं. So without wasting much time, let us look at the analysis. We can see these are the years and these are questions 9, 3, 3, 3, 3, 3. You can see 4, 3 and 4 and 3. So on an average, 3 or more questions they come from this chapter. Right? So now we understand that this chapter is quite important for us. So please study it hard. And one more thing that we came to realize is that most of the questions, except barely 1 or 2, they all come from your NCERT. So learn and revise NCERT line by line, verbatim, and you will be able to score full marks from this chapter.